Hello student, today we discuss about application of ultraviolet and visible spectroscopy. A few functional group chromophore may be detected by the ultraviolet and visible spectroscopy, but it is especially useful for detecting the presence and elucidating the nature of conjugated systems, including aromatic ring. In the application of the electronic spectroscopy for structure analysis, only the region above 200 nanometer is really useful and the region below 200 nanometer is hardly useful for this purpose. Some important applications of UV and visible spectroscopy to organic chemistry are summarized as follows. अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त कार्बनिक यौगिकों में कॉन्जुगेशन संयुग्मन के बारे में जानकारी मिलती है। वुडवर्ड और फिजर नियम की सहायता से कार्बनिक यौगिकों के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू ज्ञात की जाती है, जिससे हम कार्बनिक यौगिक की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। अतः अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ एप्लीकेशन हैं, वे निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, डिटेक्शन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप क्रोमोफोर। The presence or absence of a particular chromophore may be indicated by the presence or absence of an absorption band in the expected wavelength region. For example, the presence of a low intensity band in the region 270 to 300 nanometer indicates the presence of an aldehyde or ketonic carbonyl group. If the spectrum is transparent above 200 nanometer, it shows the absence of the aldehyde or ketonic carbonyl group conjugation system or aromatic ring absent. अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह की उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि किसी हाइड्रोकार्बन में 165 से 170 नैनोमीटर पर कोई अवशोषण बैंड प्रदर्शित होता है, तो उस यौगिक में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अर्थात डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। और यदि ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक 270 से 300 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड प्रदर्शित होता है, तो उसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होगा। लेकिन यदि किसी यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में 200 नैनोमीटर से ऊपर कोई अवशोषण बैंड प्रदर्शित नहीं होता है, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट होगा, उसमें संयुग्मन प्रेजेंट नहीं होगा, कॉन्जुगेशन एब्सेंट होगा और उसमें कोई भी एरोमेटिक रिंग बेंजीन वाले प्रेजेंट नहीं होगी। अतः इससे हमें कार्बनिक यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है और कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह और क्रोमोफोर की उपस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन एंड इल्यूसिडेशन ऑफ इट्स नेचर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कार्बनिक यौगिकों में कॉन्जुगेशन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है और इसकी प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। कंपाउंड कंटेनिंग ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम इंक्लूडिंग एरोमेटिक आर कैरेक्टरिस्टिक्स by their absorption above 200 nanometer. We have noted that the longer the conjugated system, the longer is wavelength of absorption. यदि कॉन्जुगेशन अधिक होगा तो अब्जॉर्प्शन की जो वेवलेंथ है वो भी उच्च होगी। Usually accompanied by the increased intensity, also substitution on conjugated system generally cause bathochromic and hyperchromic state. Thus we can elucidate the nature of conjugation by comparing the value of lambda max and extinction coefficient for the compound under study with that of a probable analogous compound.
अतः कार्बनिक यौगिक में कॉन्जुगेशन की मात्रा अधिक होने पर उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है, जिससे बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। UV spectral data for a variety of compounds are available for comparison. Acyclic conjugated diene show intense band in region 215 to 230 nanometer, absorption intensity value 71,000. Similarly, alpha beta unsaturated aldehyde and ketone show an intense K band in the 215 to 250 nanometer region with absorption intensity value usually 10,000 to 20,000, and a weak R band in the region 310 to 330 nanometer and absorption intensity value 10 to 100. Aromatic compounds are characterized by an intense band E2 band near 200 nanometer, absorption intensity value near 8,000, and a weak B band with fine structure near 260 nanometer and absorption intensity value near 200. एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन जो है वो के बैंड प्रदर्शित करता है, जिसके लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 215 से 230 नैनोमीटर के मध्य होता है और इसके लिए अवशोषण की तीव्रता या एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट लगभग 21,000 है। इसी प्रकार से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन के बैंड प्रदर्शित करते हैं लगभग 215 से 250 नैनोमीटर के क्षेत्र में, जिसके लिए अवशोषण की तीव्रता 10,000 से 20,000 के मध्य होती है। एवं इसी प्रकार अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन वीक आर बैंड प्रदर्शित करते हैं 310 से 330 नैनोमीटर के क्षेत्र में, जिसके लिए अवशोषण की तीव्रता 10 से 100 के मध्य होती है। इसी प्रकार एरोमेटिक कंपाउंड E2 बैंड लगभग 200 नैनोमीटर पर प्रदर्शित करते हैं, जिसके लिए एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू लगभग 8,000 है और यह वीक बी बैंड लगभग 260 नैनोमीटर पर प्रदर्शित करते हैं, जिसके लिए एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या अवशोषण की तीव्रता का मान लगभग 200 है। अतः अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें कार्बनिक यौगिक में कॉन्जुगेशन की जानकारी मिलती है और उससे हम कार्बनिक यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स एंड एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट increase as the number of conjugated multiple bonds increase. Thus, the extent of conjugation can be estimated. It has been found that the absorption occurs in the visible region if a polyene has 8 or more conjugated double bond. A polyene with such a sufficient conjugation become colored. For example, beta carotene orange and lycopene red having 11 conjugated double bonds are colored and absorbed in the visible region at 450 nanometer and 474 nanometer. अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कॉन्जुगेशन की मात्रा का जो विस्तार है उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे बीटा कैरोटीन ऑरेंज कलर का है, लाइकोपिन रेड कलर का है, इनमें 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हैं। अतः कॉन्जुगेशन बढ़ने से लैम्डा मैक्स वैल्यू भी इंक्रीज होती है, जिससे बीटा कैरोटीन विजिबल रीजन में 450 नैनोमीटर पर एवं लाइकोपिन विजिबल रीजन में 474 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट,
Distinction between conjugated and unconjugated compound. अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, की सहायता से कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में अंतर या विभेद किया जा सकता है। इन जनरल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन डिस्टिंग्विश आइसोमेरिक, conjugated and unconjugated compound. For example, isomeric diene 2,4-hexadiene and 2,5-hexadiene can be radially differentiated because the former, being a conjugated diene, will absorb above 200 nanometer, nearby 227 nanometer, whereas the latter, being an unconjugated diene, will be absorbed below 200 nanometer, nearby 170 nanometer. यहाँ पर 2,4-हेक्साडाइन एक कॉन्जुगेटेड डाइन है जो कि अल्ट्रावायलेट विजुअल क्षेत्र में 227 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है, जबकि 2,5-हेक्साडाइन ये अनकॉन्जुगेटेड डाइन है, अतः ये 170 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है। अतः इनके लैम्डा मैक्स वैल्यू के आधार पर हम इन दोनों में आसानी से अंतर कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेटेड डाइन जो है उसके लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू उच्च है और अनकॉन्जुगेटेड डाइन के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू उससे कम है। सिमिलरली, एन अल्फा बीटा unsaturated ketone can be radially distinguished from its beta and gamma isomer because the former, having conjugated system, will not show the both pi to pi star and n to pi star transition band at longer wavelength compared to that of the latter, which is an unconjugated compound. अतः इस प्रकार हम कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड कंपाउंड में आसानी से अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ स्ट्रेन इन ए मॉलिक्यूल लाइक 2 substituted biphenyl. There is steric strain which forces the ring out of copolarity, resulting in the loss of conjugation. conjugation में कमी होती है। This causes hypsochromic and hypochromic effects, which are measures of steric strain in such molecule. The larger are these effects, the greater will be the steric strain. Next, determination of configuration of geometrical isomer. अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम ज्यामितीय समावियों के विन्यास का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे cis समावि में त्रिविम बाधा से अणु की समतलता नष्ट हो जाती है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः उसका यूवी स्पेक्ट्रम कम तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण मैक्सिमा प्रदर्शित होता है। इसके विपरीत ट्रांस समावि में उच्च तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण प्रदर्शित होता है। जैसा कि हम यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे कि cis isomer absorb the shorter wavelength and have lower intensity than the trans isomer. cis स्टील्बिन है वो 283 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है, जबकि ट्रांस स्टील्बिन है वो 295 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टील्बिन में समकक्ष रूप वाली स्टील्बिन के दोनों फेनिल समूह के हाइड्रोजन परमाणु में त्रिविम प्रतिकर्षण होने के कारण दोनों फेनिल समूह एक तल से नहीं रह पाते, तथा विपक्ष रूप वाले स्टील्बिन में दोनों फेनिल समूह विपरीत दिशा में होने से उनके हाइड्रोजन परमाणु में त्रिविम प्रतिकर्षण नहीं होता है और ये समूह एक ही तल में रहते हैं। इस प्रकार से ट्रांस रूप जो है विपक्ष रूप वाले अणु में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन
आसानी से लगभग 295 नैनोमीटर पर हो जाता है, जबकि सिस रूप का अवशोषण है उसके लिए लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू 283 नैनोमीटर है। तो इस प्रकार हम ज्यामितीय समवायों का विन्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अतः सिस स्टील्विन है वो लैम्ब्डा मैक्स 283 नैनोमीटर पर, एंड ट्रांस स्टील्विन है वो लैम्ब्डा मैक्स 295 नैनोमीटर पर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ टोटोमेरिज्म। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी सहायता से चलावी रूपों का अध्ययन किया जा सकता है। यदि कोई यौगिक चलावीयता टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है तो उसका कौन सा रूप अधिक प्रायिक होगा, अर्थात वह यौगिक के किस रूप में अधिक समय तक रहता है, इसकी जानकारी हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आसानी से मिल जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पर 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन उसके चलावी रूप पिरिडोन 2 के साथ साम्य में रहता है। इसके यूवी स्पेक्ट्रम से ज्ञात होता है कि यौगिक का साम्य शीघ्र ही पिरिडीन 2 की तरफ विस्थापित हो जाता है, जो कि एक अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोनिक यौगिक है, अर्थात इसका कीटोनिक रूप जो है वो अधिक प्रायिक है, अर्थात ये कीटोनिक जो रूप है उसमें अधिक समय तक रहता है। अतः हमें यहाँ पर दो चलावी रूप जो टोटोमेर रूप हैं उसकी प्रायिकता के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फीचर्स इन डिफरेंटेड सॉल्वेंट। इन सर्टेन केस द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड चेंज विद द चेंज इन सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के चेंज होने से कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरल हाइड्रेट show an absorption maxima at 290 nanometer R band, but this band disappears when the spectrum is recorded in aqueous solution. This shows that the compound has a carbonyl group in hexane solution and its structure is CCl3CHO.H2, whereas in aqueous medium it changes to Cl3CCHOH का whole 2, अर्थात सॉल्वेंट के चेंज होने से कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी चेंज होती है। इसकी जानकारी हमें अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी सहायता से अज्ञात यौगिक की पहचान की जा सकती है। ज्ञात यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम से किसी अज्ञात यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम की तुलना करते हैं और उसके आधार पर हम अननोन जो कंपाउंड है उसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से पॉलीन्यूक्लियर बहुकेंद्रकीय हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी मिलती है। बेंजीन तथा बहुल केंद्रक हाइड्रोकार्बन यूवी स्पेक्ट्रम में उच्च तरंगदैर्ध्य पर अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड दर्शाते हैं, जिससे इन यौगिकों का आसानी से परीक्षण हो जाता है और इनकी वलय में किसी प्रतिस्थापित समूह के जुड़ने से बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है, अर्थात उस तरंगदैर्ध्य की तरफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी सहायता से पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलुसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए एंड के। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी सहायता से विटामिन ए और के की संरचना को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। विटामिन ए1 तथा ए2 में कॉन्जुगेटेड पोलिन सिस्टम होता है। विटामिन ए2 कॉन्जुगेटेड तंत्र में एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इसका लैम्ब्डा मैक्स का मान उच्च हो जाता है। विटामिन ए1 के लिए लैम्ब्डा मैक्स 325 नैनोमीटर है और विटामिन ए2 के लिए लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू 351 नैनोमीटर है। इसी प्रकार विटामिन के1 व के2 में 2,3-डाइमेथिल नेफ्थाक्विनोन न्यूक्लियस होता है, जिसका अवशोषण
उच्चतम होता है, यानी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है वो 243, 249, 260 और 269 और 330 नैनोमीटर पर होता है। अतः इन अवशोषण बैंड से हम विटामिन के की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि विटामिन A1 के लिए लैम्ब्डा मैक्स 325 नैनोमीटर और विटामिन A2 के लिए जो है 351 नैनोमीटर है। इसके आधार पर हम विटामिन ए की पहचान कर लेते हैं। विटामिन A2 में एक अतिरिक्त डबल बॉन्ड होता है, जिससे क्या होता है, इसमें लैम्ब्डा मैक्स का मान उच्च हो जाता है। Next, determination of strength of hydrogen bond. Solvent like water, ethyl alcohol form hydrogen bond with the n electron of carbonyl oxygen. Due to this, the energy of n electron in the ground state is lowered depending upon the strength of hydrogen bond. Thus, n to pi star transition of carbonyl compound is shifted toward a shorter wavelength. Hence, the measuring the length of carbonyl compound in a non-polar and polar protic solvent, the strength of hydrogen bond can be determined. Consider n to pi star transition of acetone in hexane at 279 nanometer and that in water 264.5 nanometer. The blue shift by 14.5 nanometer correspond to an energy of 5 kilocalorie per mole. Clear, the strength of hydrogen bond between water and acetone is 5 kilocalorie per mole. It is in fair agreement with the known strength of hydrogen bond. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति से अवशोषण बैंड कम तरंग दैर्ध्य की तरफ विस्थापित होता है। फॉर एग्जाम्पल, एसीटोन का विलायक एन हेक्सेन में लैम्ब्डा मैक्स 279 नैनोमीटर पर प्रदर्शित होता है, जबकि एसीटोन का विलयन जल में बनाने पर लैम्ब्डा मैक्स 264.5 नैनोमीटर पर प्रदर्शित होता है। अतः दोनों के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्ब्डा मैक्स के मान में अंतर का कारण एसीटोन का जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाना है। इसके अतिरिक्त अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी होता है, जो कि बीयर-लैम्बर्ट लॉ पर आधारित है। इसकी सहायता से अननोन अज्ञात सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्ञात की जा सकती है। अतः अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कार्बनिक रसायन में अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग है, जिसकी सहायता से कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात की जा सकती है। थैंक यू।